Very good morning, dear students. Myself, Mrs. Nikita Mirman, presenting to you Standard 7, subject Social Science. Today, we will learn about chapter number 4, Rajput Age. In this chapter, we will learn about how the Rajput era was and what is the condition during that Rajput era. Let's start the chapter. Parimal was watching a historical serial on TV which he saw a palace. A thought arose in his mind. Are such palaces still in existence? Who had constructed such places? Being curious, he went to his grandfather to get answers to these and other similar questions. His father told him a few things like what is discussed below. ओके परिमल नाम का एक बॉय था. जब भी वो टीवी पे एक हिस्टोरिकल सीरियल देख रहा था तो उसने पैलेस देखा. जाहिर सी बात है, छोटा बच्चा पैलेस वगैरह सब देखता है तो उसके माइंड में एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि क्या ऐसे पैलेसेस अभी भी है. तो वो बहुत ही क्यूरियस था ये सब जानने के लिए. तो उसके ग्रैंडफादर के पास जानता है और पैलेस के बारे में और बाकी अदर क्वेश्चन जो उसके मन में क्यूरियोसिटी है उसके बारे में वो पूछता है. Such palaces were constructed by kings in ancient times. We come across many such palaces, some of which are in ruins while others are in good condition. There is a difference between the construction of structures in the present time and the kind of work done in earlier ages. From these differences, we can make out the period during which a particular structure was constructed. Monuments constructed during the Rajput age can be seen even today. To know about that era, let us know about the main Indian density of that time. ऐसे जो पैलेसेस थे किंग्स के टाइम पे, पुराने ज़माने में, ऐसे बहुत सारे पैलेसेस हैं जो अभी तक रूइन हो चुके हैं. उनकी कंडीशन अच्छी नहीं रही है. बाकी कोई कोई जो है जो थोड़ी सी अच्छी कंडीशन में है. तो अभी के टाइम का वर्क और स्ट्रक्चर्स और उस टाइम का वर्क एंड स्ट्रक्चर्स बहुत ही डिफरेंसेस थे. उसमें जो मॉन्यूमेंट्स थे राजपूत एज के अभी तक हम देख सकते हैं, बट कोई कोई रुइन हो गए हैं. तो राजपूत एरा में, राजपूत डेंसिटी में इंडिया में कैसा चल रहा था वो हम देखेंगे. लेट्स सी द राइज ऑफ न्यू डेंसिटी. After the death of Emperor Harshvardhana in the middle of the 7th century CE, many feudal chieftains and landlords declared themselves to be independent and found new densities. हर्षवर्धन की डेथ के बाद इन द 17th century of middle, मैनी फेडरल चिफ्टेन्स मीन्स कोई कोई जो उन्होंने राज्य के राजा और लैंडलॉर्ड जिनके पास बहुत सारी ज़मीनें थी, वो अपने आप को वो राज्य से अलग करके न्यू डेंसिटी बनाने के लिए वो रेडी थे, क्योंकि उनके पास वैसा पैसा वैसा कुछ सब कुछ था. नाउ लेट्स सी द मैप ऑफ इंडिया ड्यूरिंग राजपूत एज. सी राजपूत एरा, यहाँ पे कितना सब कुछ बिसरा हुआ है राजपूत एरिया में, आप देख सकते हो. It is said that Raja Bhoj during 1016 to 1053 CE suffered from brain tumor in his early age. In the early 10th century, he was operated on by two brothers from Ujjaini who sent him into a controlled coma using medicine called Sammohini. Then they opened his skull and removed his tumor. Raja Bhoj survived this surgery and lived a healthy life. राजा भोज जिस समय पे थे 1016 से 1053 की साल में, उनको अर्ली एज में, वो जब भी छोटे थे तभी उन्हें ब्रेन ट्यूमर हुआ था. उस समय 10th सेंचुरी की बात है. और उसको राजा भोज को ऑपरेट किया था, दो ब्रदर थे उज्जैनी से. तो उन्होंने उनको ऑपरेशन करने से पहले बेहोश कैसे किया देखो. सम्मोहिनी एक ऐसी कला है जिससे किसी को भी हम सम्मोह के, किसी के भी कुछ उनको अभी हम कह सकते हैं कि उन पे ऐसा कुछ काला जादू या कुछ करके हम उसे
बेहोश कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, और ऐसा बेहोश करके वो जो ब्रदर थे उन्होंने राजा भोज का ट्यूमर निकाला उनको ऑपरेट करके, और अभी वो हेल्दी लाइफ जी रहे थे। The rulers of the Pala dynasty and Sen dynasty ruled in Bihar and Bengal. The rulers of the Pala dynasty had added Pala to their names, and so their dynasty was known as the Pala dynasty. With the help of your teacher and the library, find out more information about the rulers of the Pala dynasty. ओके उस समय पाला और सैन डेंसिटी थी बिहार और बंगाल में, वो लोग रूल कर रहे थे। तो पाला डेंसिटी ने अपने नाम के आगे, ऐसे सभी ने पाला लगाना ही है सरनेम, वैसे ही उन लोगों ने अपनी जो पाला डेंसिटी में रहते हैं उन्होंने ये रूल बनाया था। मैनी राजपूत रूलर्स ऑफ द चौहान एंड चारमैन डेंसिटी रूल्ड ओवर वेरियस पार्ट्स ऑफ राजस्थान ड्यूरिंग 7th and 8th century CE. Of them, one branch ruled over Shakambhari, a place near Lake Sambhar, which is of the north of Ajmer, in the beginning of the 8th century. Ajairaj ascended the throne of Shakambhari in 12th century. He established the city of Ajaimeru, which later came to be known as Ajmer. तो राजपूत राजा थे मोस्टली, वो चौहान या चामेन डेंसिटी में रूल ओवर करते थे वेरियस पार्ट में, राजस्थान में 7 और 8 सेंचुरी में। तो उनकी एक जो ब्रांच थी वो शाकंभरी, जो कि एक प्लेस है संभार लेक के नज़दीक नॉर्थ अजमेर में, उन पे राज्य करते थे। अजयराज जो राजा है उन्होंने अपना जो ताज है शाकंभरी का वो 12th सेंचुरी में पहना, मतलब उसके राजा बने, और उन्होंने एक नई सिटी बनाई, उसका नाम रखा अजयमेरू, और वो अभी अजमेर के नाम से प्रख्यात है। द रूल्स ऑफ द चौहान डेंसिटी कैप्चर दिल्ली, द कैपिटल ऑफ तोमार किंग्स, एंड एस्टेब्लिश देयर सुप्रीमेसी। पृथ्वीराज III और राय पित्रोड़ा was a powerful ruler of Chauhan dynasty. He is unparalleled in the history of India. Many stories and folk songs have been written about this bravery and battlefield. Chand Bardai, a famous poet, has written about Prithviraj Chauhan's valor in his epic Prithviraj Raso. We shall learn about the battle between Prithviraj Chauhan and Shahabuddin Muhammad Ghori later. ओके चौहान डेंसिटी में उन्होंने दिल्ली पे भी राज करना किया था, कैपिटल ऑफ द तोमार किंग्स, उन्होंने वहाँ पे सुप्रीम अपना राज्य फैलाया था। पृथ्वीराज III और राय पित्रोड़ा वो बहुत ही पावरफुल रूरल थे चौहान डेंसिटी के, और उन्होंने हिस्ट्री में अपना नाम बहुत आगे तक पहुंचाया है। मैनी स्टोरीज और फोक सॉन्ग्स लिखे गए हैं पृथ्वीराज चौहान की जो ब्रेवरी है, उनकी बहादुरी है उन पे। चांद बरदाई नाम के एक फेमस पोएट है, उन्होंने पृथ्वीराज चौहान की जो विक्ट्री है उनके ही नाम पे एक बुक बनाई थी, पृथ्वीराज रासो, और उसमें उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के बारे में बहुत सारी यश गाथा लिखी है। हम उसमें जो दी गई है बैटल फील्ड मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच की, उसके बाद में बात करेंगे। पहले देखते हैं आगे का। The Gohils and Gohils of Mewar, who were later known as the Sisodia Rajput, hold a unique position in medieval history. It is said that Bappa Raval established this dynasty during the Rajput era. The Chedi dynasty ruled over Jabalpur, which is to the south of river Narmada in Madhya Pradesh. It was known as the Chedi dynasty of Kalachuri, with its capital at Tripuri, present-day Tewar. In the medieval era in Gujarat, the Rajput dynasties of the Chaudas, followed by the Solankis, ruled over a Hilwad pattern. There were many valiant rulers of this dynasty about whom we will study later. गोहिल एंड गोहिल्स ऑफ मेवाड़ वो सिसोदिया राजपूत की तरह फेमस थे,
और उन्होंने मिडिएवल हिस्ट्री में बहुत ही अच्छी पोजीशन पाई थी। बाप्पा रावल थे, उन्होंने राजपूत एरा में अपनी डेंसिटी का बहुत ही प्रचार किया था और वो बाद में चेडी डेंसिटी के नाम से प्रख्यात हुई। जबलपुर में अभी का जो साउथ ऑफ रिवर नर्मदा है, अभी का जो मध्य प्रदेश में रिवर नर्मदा जाती है, वहाँ से जो जबलपुर का प्रदेश है वहाँ से उन्होंने चेडी डेंसिटी का कलचुरी, अभी जो त्रिपुरी का कैपिटल है, अभी के नाम पे तेवर के नाम से जाना जाता है, वहाँ तक उन्होंने अपना राज्य फैलाया हुआ था। और अभी मिडिएवल गुजरात में जो राजपूत डेंसिटी है उसमें चावड़ा, सोलंकी, उन्होंने अहिलवाड़, पाटन, वहाँ तक अपनी डेंसिटी, अपना राज्य फैलाया था। So during the Rajput era, many big and small states were established in South India. After the damage of Pulkeshi II, his vast empire designated into smaller states. The region of many rulers of the Chalukya dynasty is noteworthy. The kingdoms of the Pallavas and the Chola dynasty are also included the state of South India. Narasimha was a strong ruler of Pallava dynasty. The emperors of the dynasty were lovers of art and literature. The Kailasnath temple of Kachi is the best example of Pallav architecture. तो बच्चों ड्यूरिंग राजपूत एरा, जब भी राजपूत एरा चल रहा था, उनका शासन चल रहा था, तो उन्होंने जो साउथ इंडिया के जो स्मॉल स्टेट थे उनको भी अपने अंदर कन्वर्ट कर लिया, उनको भी जीत लिया। और राजा पुलकेशी II के डेथ के बाद उन्होंने चालुक्य डेंसिटी के भी कितने ही राज्य अपने अंदर कर लिए। जो पल्लव और चोला डेंसिटी के जो रूलर्स थे, लाइक नरसिंह वर्मा बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट था उनमें से, उन्होंने आर्ट एंड लिटरेचर उनको बहुत ही पसंद था। तो कैलाशनाथ टेम्पल अभी के जो कांची में है वो पल्लव राजाओं के समय के आर्किटेक्चर का बहुत ही अद्वितीय उदाहरण है। द चोला डेंसिटी ऑल्सो रूल्ड in the south. Tanjore was their capital. The rulers of Chola dynasty attacked Ceylon and annexed many territories. The Cholas had a powerful navy because of which they could attack countries even across the sea. Rajaraj I adopted a very systematic way of administration in his state. He started with the measurement of land and local self-government. Apart from them, Rashtrakuta, Chera and Pandya densities also ruled in South India. So it is evident that many densities ruled at different places during the Rajput age. There were frequent battles between them to annex each other's area. Due to the internal conflicts, there was no unity among them. Foreign invaders took advantage of this. We will discuss the administration and culture during the Rajput era in the next unit. Now, जब भी चोला डेंसिटी थी साउथ इंडिया में, तभी तंजौर था वो उसका कैपिटल था। चोला डेंसिटी में सेलोन और एनेक्स टेरिटरीज ऐसे बची हुई थी और उन पे बहुत ही पावरफुल अटैक्स होते रहते थे। जो दरिया पार की भी जो कंट्रीज थी उसमें से अटैक होते रहते। राजराजा वन के समय उन्होंने एक सिस्टमेटिक एडमिनिस्ट्रेशन चलाया था अपने राज्य में और उसने अपनी गवर्नमेंट को अपने जो लोकल एरिया है, जो लैंड एरिया है, उसका मेजरमेंट लेके उसको अच्छी तरीके से कवर अप करना वो काम किया था। ये सब काम के बावजूद राष्ट्रकूटा, जो चेरा एंड पंड्या डेंसिटी, वो भी साउथ इंडिया में राज्य कर चुकी थी। तो राजपूत एरा के दौरान वहाँ पे बहुत सारे राजा थे, उन्होंने राज्य किया था, बट वो एक दूसरे के राज्य पे चढ़ाई करके वो एक दूसरे का एरिया अपने अंडर करने का उन्हें बहुत ही शौक था। तो इस वजह से उनके अंदर कभी यूनिटी नहीं हुई। उनके अंदर यूनिटी ना होने के कारण जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे, इंडिया में जो धंधा करने के लिए आते थे,
बिजनेस करने के लिए, उन्होंने उसका फायदा उठाया। Now things to know is rulers of Rajputa dynasty in medieval age. Utpala dynasty ruled in Kashmir. Salamb, Harajvarma, Vanamalvarma, etc. ruled in Kampura in Assam. Nagpat I, Devraj, Mihir Bhoj, Mahendrapala, etc. were the great rulers in Pratihara. Sahiya dynasty ruled in Gandhar. Chandela ruled in Bundelkhand. In the beginning, Tomar ruled in Dilak. Dilak is now Delhi. Okay. Rashtrakutas ruled South India. With the fall of Chalukya dynasty, Rashtrakuta came to power. Rashtrakuta means the head of state or area. It is believed that the founder of the dynasty was an officer of that community, and hence the dynasty was named after him. Out of many rulers, Govind III was the most powerful king. In the 8th century, he established a powerful kingdom in the Deccan. राष्ट्रकूटा था, उन्होंने भी साउथ इंडिया में रूल किया था, उनका राज्य चलाया था। तो वो उस समय के बहुत ही पावरफुल राजा थे। वो अपने जो एरिया है, अपना जो रीजन है, उसमें सबसे ज़्यादा बड़े हेड कहलाते थे और उनकी वजह से उनकी डेंसिटी बहुत ही पॉपुलर हुई थी। गोविंद III वो भी बहुत ही 8th सेंचुरी के पावरफुल राजा थे। The Pandyas also ruled over South India. The Pandya dynasty is believed to be very ancient. Megasnid and Greek traveler notes the females used to rule in this community. The inscription of Emperor Ashok also contain references to the Pandyas. The Pandyas rule in present days Madurai and Tirunelveli in Tamil Nadu. Cheras ruled over South India. Chera is now known as Kerala. In ancient time, Kerala was part of the Tamil state. Later on, Kerala or Malayalam state separated. Kepalputra Rajya is mentioned in the inscription of Ashoka. Athan II was the first strong ruler of this dynasty. Charan Setugnavan was a powerful ruler of this dynasty. तो जो राष्ट्रकूटा था और पंड्यास थे, उन्होंने साउथ इंडिया में बहुत ही राज्य किया। और जो ग्रीक ट्रैवलर है मेगस्थेन्स, उन्होंने उस समय पे नोट किया है कि जो फीमेल्स थी वो भी वहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से राज्य चलाती थी। राजा अशोक का जो कंटेंट है उसमें जो पंड्यास का रेफरेंस है वो दिया गया है। उस समय पंड्यास मदुराई और तिरुनेवली, अभी का जो तमिलनाडु है उसमें रूल किया है। नाउ चेरा इज नोन एज केरला। फर्स्ट ऑफ ऑल केरला तमिलनाडु का एक पार्ट था, फिर केरला एंड मलयालम दोनों स्टेट सेपरेट हो गए। कपालपुत्र राज्य मेंशन किया गया है अशोका के इंस्क्रिप्शन में। एंड अथन II वो फर्स्ट रूलर था, वो डेंसिटी का, पंड्यास डेंसिटी का। एंड चैरन सेतुवंगन वो बहुत ही पावरफुल रूलर था। Pride of Rajput rulers. Rajputs was very brave. They felt proud to give up their lives for their country, to die but never fear, to protect those who seek refuge, to speak the truth and fight for truth were their special traits. Rajput women means Rajputani were known for the chastity and fearlessness. They sent their husbands, sons and brothers to the battlefield with the smiling face. They were so brave that if need be, they would fight on the battlefield. They preferred Johar to burn alive if their husbands were defeated or attain martyrdom in wars. The heroic stories of the Rajput age are engraved in golden letters in the history of India. राजपूत रूलर से उनकी एक प्राइड थिंग है, वो क्या है कि वो बहुत ही ब्रेव थे।
ट्रुथ के लिए लड़ना उनके लिए बहुत ही उन्हें अच्छा लगता था। राइट, राजपूत वुमेन्स है क्योंकि वो राजपूतानी कहा जाती हैं, उनमें भी इतनी फियरलेसनेस थी, बहुत ही ब्रेव थी। वो अपने हस्बैंड, बच्चे या ब्रदर को सामने से हंसते मुख भेजते थे वॉर में, और अगर वो मर जाते हैं या तो उनके हस्बैंड, तो वो जौहर कर लेती थी उनके पीछे, या कि किसी के साथ शादी करना उससे अच्छा वो जौहर करना पसंद करती थी। तो ये जो एक थिंग है, जिंदा मर जाना अपने पति की डेथ के बाद, तो जौहर करना उन्हें अच्छा लगता था, यहाँ के ऐसे जिंदा रहना। तो वो सब चीज़ें हैं, वो राजपूतानी खुद, ये आसान नहीं है अपने आप को जिंदा जला लेना, जौहर कर लेना। तो ये जो हीरोइक स्टोरी है राजपूतानी की भी, वो एक सुनहरे अक्षरों में इतिहास में लिखी गई है। नाउ लेट्स सी अबाउट द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। Question number 1. Who were known as feudal lords, means samantas? The answer is the king divided his vast empire in 3 provinces. The person who collected the revenue of the particular province was called feudal lord. फेडरल लॉर्ड्स किसे कहा जाता था, मीन समंतास। तो किंग ने अपना जो एम्पायर है वो उसने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। जो पर्सन है जो रेवेन्यू कलेक्ट करता है, मीन्स टैक्सेस कलेक्ट करता है पर्टिकुलर पार्ट का, उसे फेडरल लॉर्ड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 इज नेम द पावरफुल रूलर ऑफ द पल्लवा डेंसिटी, मेंशन एनी 2 ऑफ हिज अचीवमेंट्स। A powerful king named Narsivarma belonged to a Pallav dynasty. 2 noteworthy achievements of Narsivarma are: he had got splendid Kailashnath temple constructed in Kanchi. He was a lover of literature and art. पल्लव डेंसिटी के जो पावरफुल किंग है उसका हमें बताना है और उसके लिए क्या क्या अचीव किया है वो लिखना है। तो पल्लव डेंसिटी के जो स्ट्रॉन्गेस्ट किंग है उनका नाम है नरसिंह वर्मा, और उन्होंने जो 2 अच्छे काम किए हैं बहुत ही, तो कैलाशनाथ टेम्पल कांची में बनाना, और वो लिटरेचर एंड आर्ट का लवर था। क्वेश्चन नंबर 3 इज विच पीरियड इज नोन एज अर्ली मिडिएवल पीरियड। So period from 8th to 12th century is known as early medieval period. Question number 4. Describe the characteristics of medieval Rajput man and women, or mention the attributes of medieval Rajput and their wives, means Rajputanis. So the characteristics or attributes, characteristics means attributes of Rajputs were as follows. Rajputs were brave and adventurous. They felt proud in laying down their lives for the country. राजपूत बहुत ही ब्रेव थे और एडवेंचरस थे। उन अपनी जान भी चली जाए अपने देश के लिए तो उन्हें जरा सा भी दुख नहीं था। They never retreated in the battlefield. They offered desperate fight in saffron clothes. They embraced death. If they lost hope of winning the battlefield, they protected the refugees at any cost. They were ever ready to fight for truth. The characteristics are, वो रिट्रीटेड नहीं किए जाते थे। अगर उन्हें जब भी बैटल ऑफर होता था तो वो सैफरन क्लोथ में, मीन्स केसरी कलर के कपड़े पहन के बैटल फील्ड में जाते थे। अगर कभी वो जीतने नहीं वाले हैं तो उनके जो रेफ्यूजी है, उनके अंडर जिन्होंने प्रोटेक्शन लिया है, उनको वो किसी ना किसी हाल में बचाते थे और हमेशा रेडी रहते थे ट्रुथ के लिए फाइट करने के लिए। नाउ राजपूतानीस के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एट्रीब्यूट्स है, वो हम देखेंगे। They were known for Johar, to burn alive on the praise of their husband and for their fearlessness. They gave send off to their husbands, sons or brothers, seemingly to the battlefield. In the times of emergency, they also wore weapons and went to the battlefields for fighting. They performed Johar on the prey of their husband in case their husband met with death while fighting on the battlefield. If the wives of Rajputs feared that they would be caught by the enemy, they performed Johar to burn alive in a group. जो राजपूतानीज है उनकी क्या खासियत थी कि वो अपने
हस्बैंड के लिए जौहर कर सकती थी और वो कभी भी डरते नहीं थे। वो खुशी खुशी स्माइलिंगली फेस अपने हस्बैंड या ब्रदर और सन को बैटल फील्ड में भेजती थी और इमरजेंसी के टाइम पे अगर उन्हें अपने हथियार अपने हाथ में लेना पड़ा तो भी वो बैटल में हथियार लेके जाने के लिए रेडी थी। वो जौहर करने के लिए रेडी थी जब कि उनके हस्बैंड अगर डेथ हो जाती है बैटल में तो राजपूतानी जो है वो किसी एनिमी के हाथ में आने की बजाय जौहर करना ज़्यादा पसंद करती है। ग्रुप में पहले के ज़माने में वहाँ पे एक हो चुका है इंसिडेंट के जो राजपूतानी थी उन्होंने ग्रुप में जो जौहर क्रिया थी उन्होंने सच में की हुई थी। तो राजपूतानी ऐसे अपने आप में जौहर करने के लिए हमेशा ही रेडी रहती हैं। So here our exercise also gets over. Thank you very much everybody. Have a nice day.